Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. FTI में पढ़ के आया था, दिल्ली से आया था मैं, पहली बार बम्बई पहुंचा था, तो मुझे यही डायलॉग सुनने को मिला था कि बाहर वालों के लिए इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो राज कपूर खानदान है, एक चोपड़ा खानदान है और एक देवानंद खानदान है, बाकी बाहर के लिए बहुत मुश्किल है. यू आर राइट. नेपोटिज्म के बारे में जो कह रहे हैं कि हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह शोहरत कमाए, पैसा कमाए. सो इवन द पेरेंट्स वांट इट. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. हाँ, ये जरूर है कि किसी को दुख दे के अपने आप को बनाना, वो तो वैसे भी पाप है. ऑल न्यू टैलेंट who want to send us their records, their songs, they can send us. So अगर हम लोग कुछ बच्चे स्टार बना सकते हैं तो इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी क्या हो सकती है. हमारा कैरेक्टर कंपटीशन के अंदर सबका, पूरे भारत के एक एटमॉस्फेयर बन गया है कि दूसरे को मार के आगे चलो. वो नहीं होना चाहिए. इसके मैं खिलाफ. डोंट स्नब पीपल, डोंट गिव डिप्रेशन. मुझे भी ऐसी फिल्में मिली थी जब मैं एक्टर था, मैं साइन करने के बाद मुझे निकाल दिया. बहुत बार ऐसा हुआ था. हमको बुरा नहीं फील करना चाहिए, अगर बुरा फील करते हो तो 3 गुना और काम करना चाहिए ताकि हम जीत जाए. Hello everyone, hope you all are safe and sound and in the pink of your health. Today we have with us renowned filmmaker Subhash Ghai ji, who's all set to launch his new label Audius Music, which is going to be a platform exclusively for the newcomers. So let's hear more about it from the master himself. Hello Subhash ji, welcome to India Forums. Hello Priyanka, how are you? I'm good sir, hope you are safe sir. Yes, fantastic. I'm absolutely supercharged. I'm enjoying my lockdown by creating so many stories, scripts, poems, music, and I'm loving life. I'm creating this crisis into opportunities. Look what I'm doing today. I'm launching a music label called Audius. Yes sir, first of all, heartiest congratulations for Audius. And we're so eagerly waiting to know what's in store for us. You see, all of you know that I run a film school. Yes. We have 1,100 students study there, and we have 2,500 alumni already working in the media and entertainment companies. So we started this music school 4 years back, and I could see that there are a lot of talent in the children. As for the singers, composer, musician, and when they passed out, they are still looking for the jobs. You see, there's a huge competition there. So then I started recording few songs on the social causes with them for the last 1 year, and we recorded about 10-12 songs on social causes, sometimes environment, sometimes for voting rights, sometimes for this, plantation. So I found they are very talented. So I said, why not to start our own music label, because Mukta Arts is in a corporate company, and we had a Mukta Music that time. But looking into the changing scenario now, that every second man has a right to open his label if he's good at, right? So why not? So why to depend only big guns and wait for your turn to come? So that was the idea which came to my mind, that I discussed with my management, and I said we should start a music label on our own. And we had named this Audius because I remember 20 years back, I had opened a studio in Andheri, and the studio's name was Audius. And it was only for the song recording, background music, mixing and shooting. So it was a small studio opposite Yashraj. It is still there, a Mukta Arts studio there. It's called Audius. So I said, let us give the name of Audius, and we will promote these children from Whistling Woods, music students as well as acting students. So let us keep it a wider range of music label, which is our audio also, not pod. Now the podcast is also very getting popular, where our actors can record their plays, their speeches, their monologues, their discussions, their talks, their talk shows, right? So our actors are also, the acting students of Whistling Woods are also very brilliant. So during their course, they can have these exercises and they can
rares and they can create content. Okay. And we are all there. They have fantastic faculties. The music faculty is very good, very talented teachers of acting also. So I discussed with them, we should encourage them. So let them, when they are in final years, they can create content. And once we approve of it, that it has to go on one platform, and then we'll pick them up and put into Audience Label. Now, Audience Label will have a connection with all kind of channels, from Ghana or Saregama or all those people, where we can streamline with them, with some understanding. It is not absolutely a monetary or business kind of model. It is more of a promoting of the fresh talent. Now, having said that, it's not only for the Whistling Book, not is only our children. It is for the rest of India. All new talent who want to send us their records, their songs, they can send us. But there is a creative team who will guide them what to do, what not to do. And once their product is approved, we will put them and we will promote them also. So it is not only, but we'll start initiating definitely with the schools. We have two who are already having a rigorous training for 2 to 3 years in Department of Music as well as in acting. ठीक है ना? तो बाहर के बच्चों के लिए ये होगा ये. So we may be a good platform for many bigger label to encash it. So अगर हम लोग कुछ बच्चे स्टार बना सकते हैं तो इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी क्या हो सकती है. आज मेरी जो स्थिति है, जो मेरी स्टेटस है, वो पढ़ाने की है, एजुकेशन देने की है. आज मेरा स्टेटस अपना एक्सपीरियंस बांटने की है, अपनी सक्सेस उन बच्चों में बांटने का. ये मेरा आज मोटिवेशन है. मैं फिल्म बनाऊंगा, फिल्म बनाता रहूंगा, लेकिन आज मेरी जो खुशी है मेरे लिए पार्टिंग माय नॉलेज एंड गाइडिंग देम, द यंगर टैलेंट, how to be a star, how to become a successful, how to excel in your work, how to win the competition with your own good work, how to be a good human being. ये सब बातें हम सिखाते हैं. So, क्या कि पहला जो आज 12 बजे शाम को हम लोग रिलीज कर रहे हैं, आपको पता है, Audience Label को 12 o'clock. Yes. Where we have got lot of endorsement and lot of compliments from various singers and musicians also. Thank you very much, Mr. Gai. You have done wonderful. You're doing wonderful. तो आज 12 बजे हम लोग करेंगे with one track which we had recorded, and that track is about Gayatri Mantra. See, because when we started Mukta Arts in 1982 with film called Hero, we introduced Jackie Shroff and Meenakshi Seshadri, Anuradha Podwal and Manhar Udas, 2 singers and 2 heroes in Hero. So I brought them on the stage. And we played that music of Gayatri Mantra, which was earlier recorded by Lakshmikant Perelal. See, with the full chorus, with 100 musicians, and Manhar Udas or Anuradha Podwal. So with their voices. तो वो लोगो आज भी हमारा हर फिल्मों में, जब भी मुक्ता आर्ट्स की फिल्म आती है तो पहले वो लोगो चलता है, उसमें गायत्री मंत्री होता है. So I said, let's have a Muhurat track. So this is more of a Muhurat track. But in this track, what we have done is, we have modernized it. We have internationalized it. कि finally, whenever I used to ask students, कि आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं? बोले जी 90% पढ़ते हैं. पूजा में बाद में माँ बोलती है, पिताजी बोलते हैं. ऐसे उनका मतलब मालूम है? तो 90% को मतलब नहीं मालूम. Hardly एक आध स्टूडेंट होता है जिसको मतलब मालूम. I was shocked. Then I came to know कि बहुत से लोगों को मालूम नहीं है. हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोग जो हैं वो गायत्री मंत्र को जानते हैं, पढ़ते हैं या सुना है, लेकिन मतलब नहीं मालूम ये महामंत्र क्यों है. ये कितने हैरानगी की बात है हमारे हिंदुस्तानियों के, भारतवासियों के विवेक की, कि जो चीज रोज गाते हैं, पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, उसका मतलब ही मालूम नहीं. बोले ये तो संस्कृत है, तो रट्टा क्यों मार रहे हैं, मतलब तो समझ लो. तो फिर मैंने इस गाने के अंदर आई हैड ट्रांसलेटेड इन हिंदी कि इसका मतलब क्या है. तो उसको हमने गीत के रूप में बनाया गाने के. फिर उसके इंटरप्रिटेशन किया कि ओम कहाँ से निकला, ओम कहाँ से आया. फिर गायत्री मंत्र का मतलब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ये क्या है. तो मैंने उसको बड़ा एक ह्यूमैनिटी, बिकॉज इट belongs to universe.
It's a prayer to universe, universal power, that you give me the power to excel in my mind. Let my mind be brightened, ignite, उज्जवल हो मेरा मन, इस तरह से करो. So it is beyond religion, beyond rituals. It's power to the humanity, mankind. That's how we have played it and we have composed it. And I'm sure you will like it when you will see it tomorrow. And I'm glad that you people are supporting this cause also, to encourage children. So wait, मेरा जो एक वो second question जो आपने already answer कर दिया कि this label is going to be only for the students or also for the budding talents. मतलब ऐसा है कि only the fresh talents will be allowed to be a part of this platform, right? We will guide them also. You see, कई बार क्या होता है, बच्चे लोग अच्छा गाना बनाते हैं या अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है उसको, है ना. ट्वीक करके वो बहुत अच्छा बन जाता है. तो वो भी कमेंट हम उनको भेजें, आपका गाना सुना, इसमें हमको ये ट्वीक है, अगर आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं तो कीजिए, फिर भेज दीजिए हमको. अच्छा. फिर अप्रूव होगा तो डालेंगे, क्योंकि कंपटीशन में तो आना पड़ेगा उनको. ऐसा तो होगा नहीं वो आया तो उसको सबको डाल दिया. Right. So, you know, we will get annoyed with this. Okay. So it's going to be a combination of teaching and promoting the talent related to music. Is it of that sort? It's like a guidance. I will not say teaching. It's more of mentoring. Suppose if we like the track, suppose we like that, then we will get back to them. You know, ये तुम्हारा पसंद आया है इनिशियल स्टेज के ऊपर, स्टेज 1 में, इसको थोड़ा ऐसा कर सकते हो क्या? You know. लेकिन जो ट्रैक पसंद नहीं आएंगे, हमारी कमेटी बैठेगी, उसमें फैकल्टी होंगे, टीचर्स होंगे, क्रिएटिव लोग होंगे, तो कई बार कई चीजें ऐसी भी आएंगी, यू नो, जो आप नहीं उसको पास कर सकते. ओके. फिर उसमें फिर प्रोफेशनल लोग भी होंगे, प्रोफेशनल्स लोगों का भी, कंपोजर्स का, सिंगर्स का कंट्रीब्यूशन होगा. हम लोग जूम कॉन्फ्रेंस भी रखवाएंगे उनके लिए, यू नो, थोड़ी सी क्लासेस भी रखवाएंगे. ओके. तो सर ऑडियंस का जो अनाउंसमेंट है आप ऑफिशियली वो कल करेंगे, एंड बाय व्हाट मींस, लाइक हाउ आर यू गोइंग टू रीच आउट टू द स्टूडेंट्स, रीच आउट टू द न्यू बडिंग टैलेंट्स? व्हाट इज योर प्लान? हाउ आर यू गोइंग टू पुट इट इन प्लेस? स्पेशली अभी तो लॉकडाउन में है, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी मच डिफिकल्ट ऑन दैट एंड. थ्रू मीडिया, people like you, and throughout the PR publicity guidelines, we will convey this message to the people. And first we have to, charity begins from home. Okay. First we will with the students, you know, already we have 200 students there, musicians. Okay. Musician and actor मिला के सब. तो 200 स्टूडेंट्स का ही काम पहले वही बताते 6 महीने लग जाएंगे. So every 2 वीक के बाद एक नया ट्रैक आएगा. एक कुछ ऑलरेडी उन्होंने 10-15 किए हुए हैं जो बनाए हैं, वो भी हम लोग रिलीज करेंगे. सोशल कॉजेस पे हैं, बहुत सी चीजें, बहुत अच्छे ट्रैक्स. ओके सर, अब तक का मतलब एक सरप्राइजिंग टैलेंट, मतलब आपने कोई ऐसा एज ग्रुप में देखा हो, या फिर यू नो, बिकॉज़ यू आर आल्सो ऑन द टीचिंग एंड, यू आर नॉट लाइक, यू नो, यू आर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द टेबल एक्चुअली. यू आर आल्सो द मेकर, यू आर आल्सो द प्रोड्यूसर, बट यू आर आल्सो टीचिंग देम. तो ऐसा कुछ सरप्राइजिंग टैलेंट्स जो बच्चों में आपने देखा, दैट हैज लेफ्ट यू स्टन कि ओ माय गॉड, एट दिस यंग एज यू आर बीइंग एट दिस लेवल? Yeah, we have a student called Vaishnavi, you know, girl. She sings in 11 international languages. इतनी talented है, वो जापानीज गाना भी गा सकती है, कोरियन भी गा सकती है, और बहुत ease गा सकती है, you know. She surprises everyone. Very talented girl. There are many talented musicians, other singers also there, because it's a course for the music composition and production. और उसके बीच में singer भी निकलते हैं. Okay. So, you know, sir, as I said that आप यहाँ, like, you're also on the producing end, producing the content, and you're also on the teaching end. So, दोनों में से what excites you more? And yeah, what excites you more? You see, teaching has always been exciting to me. Even when I was a director, you know, I was working with newcomers, Jackie Shroff, Meenakshi, Madhuri Dixit, Manisha. So many newcomers were with me. You know, I used to teach them, I used to groom them. I used to guide them. So मेरी नेचर में जो है ना, एक एज ए एल्डर ब्रदर, एक बड़ा भाई होता है ना, जो बड़ी बहन होती है, उसको सिखाने की आदत होती है. तो मेरे भाई नेचर जब छोटा भी था अपने भाई बहनों को सिखाता रहता था, स्टोरी सुनाता था, ये करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो.
तो वो एक गुण जो होता है वो शुरू से आप में बचपन से आखिर तक चलता है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ इट। अगर मुझसे कोई गाइडेंस मांगता है तो मैं इमीडिएटली देता हूँ। आज मैं सब यंगस्टर्स, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूट के हों या बाहर के हों, इफ दे आस्क मी एनीथिंग, सर मैंने पोएम लिखी है या मैंने ऐसे नया सीन लिखा है, वो भेजते हैं, मैं उसको करेक्ट करके उनको वापस भेजता हूँ, अच्छा इसको ऐसा कर लो। आई डू दैट, नॉट ओनली कि इंस्टीट्यूट की तरह कि मेरे को आप विस्ली गुड आएंगे तो ही मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं। बाकी लोगों को भी मैं सहायता करता हूँ, जो भी जब भी चाहते हैं। आई डू कंट्रीब्यूट माय नॉलेज टू। जैसे you know, as we all know, you are known in the industry to give chance to a lot of newcomers, be it Shah Rukh Khan, be it Jackie Shroff, be it Meenakshi Seshadri, and many big names. And in a time जब you know ऐसा era, like you know, despite you being a person जिसने इतने सारे लोगों को मौका दिया है, there is still a section of the society that believes that you know this industry is not for the outsider. This industry does not give a chance to the outsider. तो आपका क्या कहना है इस पे? मैं जब FTI में पढ़ के आया था, दिल्ली से आया था, मैं पहली बार बम्बई पहुंचा था, तो मुझे यही डायलॉग सुनने को मिला था कि ये बाहर वालों के लिए इंडस्ट्री नहीं है। 60s की बात कर, 65-7, क्योंकि यहाँ पर तो राज कपूर खानदान है, एक चोपड़ा खानदान है और एक देवानंद खानदान है, बाकी बाहर के लिए बहुत मुश्किल है। पर थोड़े दिन बाद देखा मैंने, धर्मेंद्र भी स्टार बन गया, बाहर से आया हूँ। फिर मैंने देखा सुनील दत्त भी स्टार बन गया, मैं देखा राजेश खन्ना भी स्टार बन गया, फिर मैंने देखा बाहर से आए हुए राइटर डायरेक्टर भी बड़े बड़े डायरेक्टर बने। इसी ये जो है हमारा एक पर्सपेक्टिव जो है ना, ये थोड़ा सा इमेच्योर है, क्योंकि कला एक ऐसी चीज है जो गरीब से गरीब आदमी हो, गांव में छुपा हुआ आदमी भी वो वर्ल्ड स्टार बन सकता है। रेशमा आप देख लीजिए, गांव में रहने वाली एक औरत, वो आज पूरे वर्ल्ड में नाम कमा के गई है। हाँ कि ना? यस। गोविंदा किसी के बेटा तो नहीं थे, शाहरुख खान तो किसी के बेटे नहीं थे, अक्षय कुमार तो किसी के बेटे, मैं तो किसी का बेटा, बहुत से लोग हैं हमारी तरह। लेकिन ये जरूर होता है कि जिस घर में अगर मेरे बेटे हो गए, जब मैं बड़ा होगा तो मेरे बेटे चाहते हैं कि पापा मैं भी डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? नहीं बन। तो मैं उसको बोलूंगा देखो तुम बन सकते हो, लेकिन कंपटीशन तुम्हारा बाहर है, और तुम्हारे जजेस जो है वो ऑडियंस है, वो लोग हैं तुम्हारे जजेस, हम जज नहीं कर सकते। मेरे लिए तो अच्छा हो सकता है, तो एक्टर बन सकता है, माँ को हर एक बेटा अच्छा लगता है, लेकिन ये कंपटीशन में जाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी जो फैसला करेगी वो पब्लिक करेगी, और जो स्ट्रेंजर्स हैं, अननोन लोग हैं। एक चांस मिल सकता है, बिकॉज पैसे वाले के पास थोड़ा पैसा होता ही है। जैसे राजनीति में, पॉलिटिशियन में एक चांस मिलता है पॉलिटिकल बच्चों को, आर्मी के बच्चों को मिलता है, डॉक्टर्स के बच्चों को मिलता है, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में वो पले होते हैं। वो पले होते हैं इसलिए उसमें बड़े होते हैं, तो उनको लगता है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर अपॉर्चुनिटी इज नॉट एवरीथिंग। मेन थिंग इज ए कंपटीशन। यू आर राइट, नेपोटिज्म के बारे में जो कह रहे हैं कि हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह शोहरत कमाए, पैसा कमाए, और इसमें पैसा अचानक बहुत आ गया है, पहले इतना पैसा नहीं था, अभी बहुत पैसा है एक्टर्स के लिए, सिंगर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, तो होता है ना। इट्स अ वेरी alluring career, so even the parents want it, there is nothing wrong in it। हाँ, ये जरूर है कि किसी को दुख देके अपने आप को बनाना, वो तो वैसे भी पाप है। वो तो हमारी माँ ने बचपन में, चाहे हम दिल्ली में थे या किसी भी बिजनेस में थे, आपको भी सिखाया होगा कि बेटा किसी को दुख देख के नहीं जीतना, अपने कर्मों से, अपने मेरिट से जीतो, किसी को मार के मत जीतो, यही है ना। तो मुझे लगता है जो अभी डेफिनेशन की जा रही है नेपोटिज्म में, उसमें ये धारणा डाली जा रही है कि किसी को मार के वो खुद बन रहे हैं, ऐसा कुछ इंप्रेशन मुझे सुनाई देता है। राइट। पर ऐसा है कि कंपटीशन में कोई किसी को थोड़ी देर के लिए मार सकता है, हमेशा के लिए नहीं मार सकता। वो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें कला है, उसके अंदर एक मेरिट्स है। वो आप एक बार दबा देंगे, 2 बार दबा देंगे, तीसरी बार वो खुल के आएगा। शाहरुख आया ना, अपने तरीके से आया, फिर लीडिंग स्टार बना हो बच्चा, दिल्ली से आया हो, अनजान था। जैकी श्रॉफ आया ना, तो अगर जैकी श्रॉफ का बच्चा बनना चाहता है तो बनने, उसको कंपटीशन है, पिक्चर फ्लॉप होंगी, उसकी होंगी, लोग पसंद नहीं करेंगे, उसके होंगे। हमारी इंडस्ट्री में 70% बच्चे जो हैं, जो जिनको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं इंडस्ट्री में पिछले 25-30 साल में, मैंने देखा है
70% नहीं चले हैं, उसके बारे में आपको गिनती नहीं मालूम। 70-80% बच्चे सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, और आप भी जानते हैं कुछ स्टार्स के बच्चे भी सक्सेसफुल नहीं हुए। हाँ, ये जरूर है कि उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा हो गया कि आज हमारा कैरेक्टर कंपटीशन के अंदर सबका, पूरे भारत के एक एटमॉस्फेयर बन गया है कि दूसरे को मार के आगे चलो। वो नहीं होना चाहिए, इसके मैं खिलाफ। डोंट स्नब पीपल, डोंट गिव डिप्रेशन, गिव देम द चांस अगर दे सकते हो। या उनको बोलो कि देखो भैया, मेरा बेटा भी बनना चाहता है, तुम मेरे पास आओगे, मैं क्या दूंगा, मैं तो ऑलरेडी अपने बेटे का ख्याल रख रहा हूँ। तो आप बोल दीजिए, उसको कभी बुरा नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये जो अगर उस धारणा से है तो उस धारणा से एक खराब चीज है। लेकिन अगर विशाल तरीके से देखें तो ये कंपटीशन बड़ा ओपन है, सबके लिए है, सब आ सकते हैं। अब आप देखना भी कोविड के बाद जो है, मेरे हिसाब से 20 न्यू कमर आएंगे, न्यू स्टार्स आएंगे। उसके बाद नेपोटिज्म की वजह से नहीं, क्योंकि फिल्में जो हैं लो बजट की बननी शुरू होंगी। जब लो बजट की फिल्में बनेगी, बड़े स्टार्स को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। कहानियां तो उनको बनानी है, फिल्में तो उनको बनानी है, इसलिए न्यू कमर को बहुत चांस मिलेगा। ओके जी, गुड फॉर ऑल टुगेदर। सो बट कहीं आपको ऐसा लगता है कि डिफिकल्टी लेवल एक आउटसाइडर के लिए ज्यादा होता है, एक इनसाइडर के लिए थोड़ा कम होता है? हमेशा अगर मैं आज सुभाष घई या आप आज सुभाष घई चाहे कि मैं पॉलिटिक्स में चला जाऊं और पार्लियामेंट में बैठ जाऊं, मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। वहां पर बड़े बड़े शातिर, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। अरे तुम डायरेक्टर बनो, फिल्म बनाओ, इधर क्या आ गए हो तुम? कौन सा हमारे फिल्म लाइन के बंदे जो गए हैं, जो सक्सेसफुल हुए हैं, बताइए। बहुत से लोग गए हैं, नहीं पता, क्योंकि हर क्षेत्र के अपने माहिर लोग ऑलरेडी बैठे होते हैं। तो वो चीज में मैं जाता ही नहीं उस तरह, पॉलिटिक्स की तरफ मुझे आता भी नहीं और मुझे जाना भी नहीं, और ख्वाब भी नहीं बनाना मुझे। तो ये तो होगा ही, जहां भी जाएंगे वहां पर आपको ऑलरेडी एस्टैब्लिश लोग मिलेंगे, उनके बच्चे मिलेंगे। पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, आप देखिए ये थोड़ा अगर आप समझ लेंगे डिटेल में, पर्सपेक्टिव, बड़े पर्सपेक्टिव से, तो आपको दुख नहीं होगा। अब दुखी होने के लिए तो मैं कुछ भी, जमाना खराब है, जमाना खराब है एक वर्ड तो आराम से बोलना है ना। जमाना खराब है तो रामचंद्र जी के टाइम पे भी था, उधर भी रावण था, कृष्ण जी के टाइम पे भी था, उधर भी ऐसा था। वो राक्षस, देवता, दुष्ट और अच्छे लोग उस समय भी थे, अभी भी हैं, आगे भी होंगे। अब हमको कैसे चलना है? हाउ आई हैव टू फाइट विद माई गुडनेस एंड विद माई वर्क, फोकस ऑन माई वर्क। मुझे किसी को देखना ही नहीं है। मैं सारे जीवन में यही कहता था प्रियंका कि मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं, मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ है कि मेरी ये फिल्म पिछली फिल्म से बेहतर कैसे हो। बस मैं जीता चला गया। इतना मतलब लोगों को सपोर्ट करके, लोगों को इंट्रोड्यूस करके, लोगों को गिविंग देम अ गुड प्लेटफॉर्म, एक इंडस्ट्री जहाँ पे इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन, वहाँ पे भी आप लोग अपने लोगों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, स्पेशली न्यू कमर्स को। एंड देन टू दे टर्न बैक एंड दे see something bad about you, and मतलब you have been the one who has given them a chance, a break, और फिर पीछे पलट के वो जो किसी के ओवर हियर से में जाता है वो खुद ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर अच्छा नहीं है जो किसी की बात को सुनेगा। किसी के से कुछ नहीं होता है, आपकी कला से होता है। मुझे भी ऐसी फिल्में मिली थी जब मैं एक्टर था, मैं साइन करने के बाद मुझे निकाल दिया, बहुत बार ऐसा हुआ था। लेकिन क्वेश्चन है, मुझे ये बुरा नहीं लगता था, कि मुझे लगता था कि उसके रोल में मैं फिट नहीं हूँ, उसको बेहतर लड़का मिल गया है, तो उसके रोल में बेहतर मिल गया इसलिए उसने ले लिया। तो होता है, कंपटीशन है, ओपन मार्केट है, हमको बुरा नहीं फील करना चाहिए। अगर बुरा फील करते हो तो 3 गुना और काम करना चाहिए ताकि हम जीत जाए। ये मेरा सलाह है इस बच्चों को। धन्यवाद। आगे कुछ? नाइस मीटिंग यू प्रियंका। See you again. Yes sir. Thanks. Yeah, okay, take care. Thank you so much. Yeah, thank you. So guys, that was Subhash Ghai sir with us, and this is Priyanka Chauhan signing off for now for India Forums Mumbai. And all of you, please take care of yourselves, stay at home, stay safe. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.